So today we will try to create a UI and test our application. So as we have a product controller, it is returning REST controller. क्या difference है? So now we will make a copy of this product controller. I will call it product controller FE, front end. Okay. And now whatever this will interact with the product service. So let's keep it like this, and rest all we can remove. But the service layer and repository layer is there, correct? So that is there. So we have just made a simple class, okay, with product service. So now when we had created a, in, we had done Spring MVC, right, with you guys. So how did we add a product? How did we add a product over there? So we would send a empty here add player form, right? What did we do over here? We would make an empty player and send that empty player to a view, correct? What is the view name? Player X, and this view would be there where the view resolver would show us that we should go to the src main web app web inf views folder, and over here there should be a view by this name, right? So player X, so there should be a view by the name player X over here. Maybe would have deleted that. Yeah, this is the view name, right? Add player form, so there should be a add player form view over here, correct? And this object which we have made over here will be referred as player X in the front end, correct? Yeah, so how we would store all our views in this folder? Here we have to store all our views in the resources templates folder. Which folder? So we had initially done a test to show, right? Initially we had done this testing, right? सो गया कि हाथ पे रख के। तो initially we had done a testing to show you all. We have added the library for time leaf then. So first we have to add the library for time leaf if you are going to show the response on a web page. So let's check whether the library is added, okay? Dependency is added. Okay, then we have made our new controller, and I'll annotate it as add controller. Why add controller? Because now we are returning a web page, right? So now first thing first, what will we do? We'll make a empty. So we'll have to make the form. Okay, I'll just copy this same thing. So this is same. Whatever we have done over there, no, same thing we are applying over here. So we have done MVC, so you all should know. So what am I doing over here? Add product form, right? What is our okay? So I'll keep it as kebab case. Add product form. So whatever is the endpoint, the function also will have the same. Add product form. I'll make an empty product. Remove this. Save it. Do a Control Shift O. And then make a model and view, and then we'll go to which file, and this P1 will be remembered as product. So I should have this view. Now we can make our views in a HTML. See over here we had test HTML. So in templates, right click,
HTML file. Okay, and so here I have a template to add a product form, so we can use that template unnecessary. No need to create a one. See over here, add product form. You can directly use this. It's self-explanatory for you guys, at least those who have done relatively decent amount of HTML, CSS should be able to relate with this. So we have added Bootstrap first. Okay, these Bootstrap classes, you get this template ready made. Okay, so if you go and search Bootstrap form, so you have this template ready made. This forms template, you can take it from here also. Whichever form you like, you can take it from your form and all that stuff. So we are adding a new product. Then over here, that product which we have sent from the backend, what is the product we have sent? Product, right? That should match with this keyword object dollar. That should be same over here. Okay, and now these are the labels. So you want, what do you want to accept from the user now? Okay, product title, description, category, price, and blah blah blah. Okay, so this th field should be matching with the entity field. This th field should be matching with the entity field this way. So this case and spelling should be correct as per this. Okay, as per what you're putting over here. Rest you can give whatever IDs you want to, but the th field this should match with the entity. Okay, so description is there, price is there. Okay, so here see, we are taking the product image as a text. Then later on we'll try to improvise and try to take this as a image. So I'm just taking as a plain text because it is input type as text. Okay, then this the button over here, which is what type? Submit button. And when you click on the submit button, it goes to the forms action, right? So where is the action going to? Slash Amazon slash add product. So maybe we can route our controller with a mapping that doesn't conflict with the previous controller. Slash Amazon. So all our UI endpoint will be prefixed with what? Slash Amazon. So this is going to where? Slash Amazon slash, and it is what type of mapping? So I'll have to come here and make a by what? Add product. And what will this do then? So these are all returning views right now. So what will this do? What that object which has come from the front end. Now how do we receive that object in the back end then? How do we receive the object on the back end? Hmm? But how? How will we pass it? How will we receive it in the controller? So this object, when I click on the submit button, this entire object now is coming to this endpoint which I have made over here. So how will I receive that? At the rate model attribute. Remember, send from front end to back end. From back end I can send using model, model map, model and view. And how does it come from there? What type of object is coming?
Now what will I do now? Again create a model and view, set the view name. So after everything goes well, okay, first let's try to make a request mapping which will show us all the products. Which will show us all the products. So we'll make a endpoint for all products. Okay, so it can show us all the products. So what will we do now? We need to fetch all the products, right? So how do we fetch all the products then now? Remember in the service we had made get all products, so we can use this service method. We have auto wired the object of service over here. So what will this give me in return? List of product. I will call them as products. Import the list from util. And this products, I will go to the, I'll go to a view called as all products, and this products I will call there by what name? Products. So let's create a view by what name? All products. So in the templates, new. One sec, let me just check. So we'll make HTML. We'll make a view called as all products. Okay, so I've made the view all products. So at line number 27, we will make a view all products. Okay, and we will route it to all products over here. So if I want to display all the products, then all the products have come in which variable? Products variable, right? So if I want to access it in the front end, I have to access it by products, right? So this, so we can see the code from here, all products. This is the view. Copy it, and then you can paste it over here. Okay, so we are adding the style sheets over here. Okay, and then product management, add product, and what are we going to add? Title, description, category, price, image. Okay, and if you want, you can take some actions also. So this we can hold on for some time. Maybe I can comment it, then we can later on show. So see what are we adding? That all products is coming where? Products, and we are putting a for each loop over here. One is coming in the product, and I'm showing the title, description, category. Okay, and then rupees, and then the price. Rupees icon, and then the price. And here we are showing the image. Okay, and then we can comment out these two TDs at the moment, which we can activate later on. Okay, so as of now I'm just showing the price and the image, and then tr closes body, right? So I do a save. So we come over here. So when I try to hit all product, it should route me over here. Okay, so comment out this at the moment. So let's try to run and check whether these are endpoints are working or not. Have you done Swagger with you all? Swagger you all have done, right? You're able to see the endpoints on Swagger.
So how do I hit this now? What is the port number it is starting on? Port number 8089. Okay. So let's start. Localhost 8089 slash Amazon slash all products. Okay, so it is showing all products over here. Getting it? That is a bootstrap effect which we added, and so it is showing like this. Then, okay, this is good. So if I now want to add a product form, what will I hit? So when I hit add product form, it opens up the blank form, correct? So here the product image I am taking as a text, right? So when I add the product, when I click on add product, where will it go? Where will it go? When I click on add product, it will go to the endpoint Amazon start add product. So see over here. So we'll come over here, add product. This is what we are coding, and that object will come where in the product. And how are we adding the product? Remember, take any of the variable, no? This one, right? So what is this doing now? Maybe we made a view, or rather we'll just return a string over here. So on it for model and view. So we have added a product, and after adding, we'll return back to where. So if you want to return back to all products, so there is an endpoint by this name, right? So if you want to return back to an endpoint, what do we do? Redirect. What we do? Redirect. So we will redirect to all products. So after adding, we'll get the product over here. That product is added to the database, and then we'll return back to the view. So I save it. We have added dev tool. It will refresh. So now let's try to hit it. Let's try to hit it now. Let's enter a title. Test ET001. Take any image. Add product. See it adds. Okay, while writing, no static resource, all product. Okay, we have to give what? It is showing 404, no? It is showing 404 means endpoint not found. So we should have been careful of. Okay, so this is the end. So now let's come back. Has it restarted? Yes, it has. So we'll take test ET001 Even that last one got added, okay? It did not show, but it got added. See, okay? You see both over here. Getting it? So the images were dummy images, so it is not showing up. Correct? So now if I want to upload the image from my hard disk, okay? So we are just adding the image as a text file, right? So this is not appreciated. If you want to upload the image as a, you want to browse and then fetch the image, then for that I have made a documentation. Okay? Upload image from local computer. So we can follow these steps, and we should be able to upload the image. So what is the first step?
replace the text box with a input type as image file. Okay, so here input type as file, so replace that. So I copy it from here and we come here in the add products form, replace with this control shift F, product image, and we have given the name as file. Okay, in the form now we are going to send an image, right? Image will be encryption, so put this as a part in the form. We already have the form attribute over here on the top. What we have to prefix over here to the form after post multi-part form data. Okay, this is the second thing we have to do. Then in the add product form, okay, which will come over here. This is the add product, not add product form. So what we have to add, we are getting the product from there, right? And we will get the file as a request param. That will not come part of the product. So what will we add over there? So we go to the controller and here, right? So request param, and what is the name? This name should match from here. The name image file. So that should match over here. Image file. And part file throw the IO exception. Okay. There is no bracket over here. Right? Yeah. All good. Then what is the next step in this? Add product. You got to read the product. Okay. So read this public string add product. This is there. In that you have to read the file. Just so before the service, before this code, just add this if condition. Just add this if condition. Control shift O. Now from where do we need to read all this? Should have given from where we should have read this. Take the path from NIO file path. Paths from NIO file paths. And files of NIO files. Take all the three from NIO. I should have mentioned this. From where we have to do the imports. So the imports from there. So now what this code is doing is it'll make a directory by the name what? Uploads. Okay, so there will be a directory made over here by the name uploads over here in your main directory. Okay, and what is our port number? So whatever file I will be uploading, it will create an entry in that uploads folder. So it will give a random number. So if I'm uploading abc.jpg, it will give you a random number like this, then abc.jpg. So the file which will be stored in the abc in the uploads folder will be by this name. Uploads folder will have this file name, and this is on my hard disk. My hard disk, the file name is abc.jpg, but when it gets added to the uploads folder, it gets some unique id and then the name. Okay, and while storing, how here we are storing the domain also in the image. When we were writing the image, if you observe, see here, fake store api.com, from which server it is coming, right?
So that's why I'm adding over here also from which server our file is coming. So when we want to read this file in React, we will get the entire path of this file. So localhost 8089 in the uploads folder by this file name, that random number dot file name dot jpg, correct? So this product which I have got, to that I'm adding this exclusively now. So this product set the image and set this image as a file name, okay? And then we'll send this product to the service layer. Getting it? So this is the next step. I guess we are done now. Okay, now in the web config you have to make a web config class. So do we have a config package? Okay, we have app config, swagger config. Let's make a new. So let's see if we can make the app config itself. This is containing beans. So we need web MVC configure. No? So we'll make a new class web config, and we will just write this configuration in the web. Control Shift. So what is this doing? In the uploads folder, we are going to write this file. Yes, now we are good to go. Yeah, done. Okay. So now let's try to refresh. Add product form. Okay, got it. Test 80004. Now see. Now I'm going to browse this. I will open up my hard disk. Okay. So let's take any document which we have added. I'll take this. Add product, and it reflects over here. Getting it? And if you want to see where it is in the hard disk in the application, okay, there is a product. Let's refresh this. So do you see uploads folder? And see over there a unique number underscore the name of the file. Okay. What if I add this file again? Then will it point to the same? Add a duplicate. Let's check. Will it create one more entry over there? So I guess each file which we are uploading should have a unique entry. I'll take the same file again. Add product. Got it? Let's check over here. Let's refresh this. ठीक है, दिख रहा है? सेकेंड फाइल भी आ गई, हालांकि दोनों भी सेम फाइल है, पर यहाँ पर हर फाइल की यूनिक एंट्री बनेगी. ओके, तो वो काम इधर हमने किया ये कंट्रोलर के अंदर. ये वो काम कर रहा है, अपलोड फोल्डर बना रहा है, उसका पाथ ले रहा है. ठीक है, देखो क्या कर रहा है, टाइम लगा रहा है, टाइम. वो करंट मिली सेकेंड्स है, ये जो है ना, ये 1766816 ये करंट मिली सेकेंड्स है. मिली सेकेंड्स को क्या कॉन्कैट कर रहा है, ओरिजिनल फाइल नेम, और एक नई फाइल नेम बना दिया, उसको स्टोर कर रहा है उस पाथ में. और हमारे डेटाबेस में क्या होगा, स्टोर होगा फिर जाके, डेटाबेस में क्या स्टोर होगा फिर अभी ये. हाँ भाई, डेटाबेस में ये स्टोर होगा पूरा, उसके सर्वर के पोर्ट के साथ में लंबा बनेगा, यूआरएल बनेगा, ताकि जब आप रिएक्ट पे अगर इसको यूज़ करना चाहो, तो अभी आप रिएक्ट में तो ये यूआई यूज़ नहीं करोगे, टाइम लीफ का खुद का यूआई बनाओगे, और वो इमेज वो पूरी सर्वर से लेके आएगा. तो अपने पूरा सर्वर का पाथ दे दिए. ठीक है, तो अभी आप लोग क्या लोकल यूज़ कर रहे हैं क्या? तो देखो यहाँ पर देखते हैं प्रोडक्ट में सारे आ रहे हैं क्या. दिख रहा है?
लोकल लोकल होस्ट 8089 अपलोड्स ना, पूरा आ रहा है ना। Yes, sir. तो अगर आप Yes, sir. ये इसको अगर अलग से भी हिट करना चाहो आप, तो अलग से फाइल खुल सकती है। देखो मैं इसका पूरा पाथ कॉपी करता हूँ। सर्वर तो अपना ऑन है ना, ऑन है। मैं हिट करता हूँ उसको, देखो खुला, यानी वो फाइल अपनी लाइव चल रही है। तो जब मैंने यहाँ से एक्सेस कर लिया ब्राउज़र से, तो मैं रिएक्ट के उससे भी एक्सेस कर सकता था। ठीक है, अगर मैं Yes, sir. ये चीज़ें ऐड नहीं करता तो फिर वो लोकल हार्ड डिस्क पे चलेगी सिर्फ। ओके, तो ये हमारा हो गया ऐड, ये हमारा हो गया शो ऑल। ओके, अब मुझे अगर प्रोडक्ट ऐड करना पड़ रहा है तो मुझे बार बार क्या खोलना पड़ रहा है, यहाँ से ऐड प्रोडक्ट फॉर्म हिट करना पड़ रहा है ना। तो क्यों ना फिर मैं क्या करूँ, ये जो है ना ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर यहाँ पर बटन दिख रही है, Yes, sir. इसके क्लिक पे उसको लिंक कर देते हैं। तो ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने बटन ऐड कर दी ना, ऐड प्रोडक्ट, किसको लिंक कर देंगे उसको, And so, जो अपन अपना जो अपन सिंगल खोल रहे हैं ना, ये वाला है ना, जो अपन अपना yes, sir. सिंगल प्रोडक्ट खोल रहे हैं, उसी को यहाँ दे दो ऐसा, है ना। Yes, और सेव करो। तो अभी आपको बार बार सिर्फ आके, तो अभी हम इसको रूट रूट कर सकते हैं अगर अपन इसको, तो हमें सिर्फ एक ही एंड पॉइंट करना पड़ेगा। कौन सा, ऑल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ से उसको हम हिट कर सकते हैं। ऐड प्रोडक्ट किया, खुला, वो ऐड करो, आप ऐड करो तो चला जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताना है कि अगर मैंने अपडेट और डिलीट करना है, या मुझे ये प्रोडक्ट डिलीट करना है, तो फिर क्या किया मैंने, उसी के अंदर तो हम एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे एक्शंस का। ठीक है, उस एक्शंस के कॉलम में हम जाएंगे और एक क्या कर देंगे, बना देंगे एंड पॉइंट। कौन सा, Amazon delete Apple product तो ये भी and एक, update product. हाँ तो ये भी एक टीडी हो जाएगा। तो ये सिर्फ मैंने क्या किया, इसको मैंने अनकमेंट कर दिया बस। तो ये जो कमेंट है यहाँ से सरकाया मैंने और यहाँ डाल दिया उसको। तो ये तो अभी भी कमेंटेड है, पर ये अभी अनकमेंट हो गया, पर इसका टीडी नहीं हुआ। तो टीडी यहाँ से ले लो, टीडी यहाँ लगा दो उसको। तो अभी एक टीडी आ गया, क्या कर रहा है वो, Update product और वो क्या पास कर रहा है उसको। ID product ID. तो फिर क्या करेंगे, हम एंड पॉइंट बनाएंगे, है ना। और ये किससे हिट हो रहा है, Yes, sir. किससे लिंक हो रहा है, बटन से क्या हाइपर लिंक से। Hyperlink. तो हाइपर लिंक का जो भी रहेगा वो रिक्वेस्ट मैपिंग रहेगा। क्या रहेगा, रिक्वेस्ट। Request mapping. हाँ, तो अभी अपने पास डिलीट मैपिंग का है ना एंड पॉइंट, बस वही कॉपी कर लो, सेम वही कॉपी कर लो। डिलीट नहीं किया क्या तुमने कभी, तुमने कभी डिलीट किया नहीं। Yes, sir. अरे बाप रे, डिलीट का तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डिड वी डू अपडेट, डिड वी डू अपडेट और नॉट। Sir, again, sir, update भी नहीं किया. नहीं किया अपने अपडेट और डिलीट। तो डिलीट प्रोडक्ट, ठीक है। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, डिलीट प्रोडक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या पास करेंगे उसको अपन, प्रोडक्ट आईडी। डिलीट तो बहुत सिंपल है। तो और क्या आ जाएगा, पाथ वेरिएबल ये, सही है। तो अभी हम क्या करेंगे,
क्या पास कर देंगे इसको, सही है। और ये कुछ रिटर्न नहीं करता है, तो हम खुद ही अपना एक रिटर्न कर देंगे इसको, तो एक स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। क्या कर देंगे रिटर्न, अपने स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे, क्या बोल के, प्रोडक्ट सक्सेसफुली, प्रोडक्ट विथ आईडी PID, ठीक है, डिलीटेड सक्सेस, ऐसा कर। अब ये है क्या एंड अपने पास, कंट्रोल शिफ्ट ओ करो मैपिंग को, ये फंक्शन है क्या, क्रिएट कर लो उसको, और इसके अंदर क्या करो, प्रोडक्ट सर्विस का एक फंक्शन है डिलीट बाय आईडी, क्या नाम है, प्रोडक्ट रिपोजिटरी ना, डॉट क्या है, छोटा पी ना, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ना, क्या है, डिलीट बाय आईडी, PID, ठीक है। आप उसको पहले चेक कर सकते हो अगर वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, इफ नॉट प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट एग्जिस्ट्स बाय आईडी, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करे तो आप एक थ्रो कर सकते हो, रन टाइम अपन ने किया है ना एक्सेप्शन थ्रो, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर के अंदर है ना, प्रोडक्ट नॉट फाउंड है ना, तो इसको क्या करना होगा, इसको है ना प्रोडक्ट नॉट फाउंड की जगह पे ना एक जेनरिक कर देना, रिसोर्स नॉट फाउंड, तो फिर वो प्रोडक्ट नॉट फाउंड, यूजर नॉट फाउंड, कस्टमर नॉट फाउंड, सब पे काम कर सकता है। ये कब बार बार लिखना पड़ा ना, तो वापस लिखना पड़ रहा है, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। तो क्या कर दूंगा मैं, और क्या करना रहता है इसके अंदर, कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको एक्सटेंड रन टाइम करो, और एक और ये उसका कंस्ट्रक्टर लिख दो, बस यहाँ पर आ गए अभी। तो अपन थे प्रोडक्ट सर्विस पे, तो क्या करना था, थ्रो न्यू सोर्स, आ गया ना, और क्या करते हैं अपन, ठीक है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट नॉट फाउंड तो कर रहे हैं, तो ठीक है जेनरिक अपन कर दिया, चलो मस्त है, डायरेक्ट अपन प्रोडक्ट सर्च कर, हम सर्च करें ना तो डायरेक्ट वही यूज कर सकते हैं, अपन यहाँ किया भी होगा, देखो इधर कितना अपन आईडी के साथ नहीं दिया था कि आईडी के साथ में, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं, तो उसको आप बोलते हैं प्रोडक्ट विथ आईडी, कौन सा आईडी है इसका, PID डज नॉट एग्जिस्ट इन डेटाबेस, ऐसा कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर एक्सेप्शन आ जाए, और वो कैसे हैंडल करना है वो अपन ने लिखा है ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर के अंदर, और फिर वो डिलीट कर देना, ये कब, जब वो एग्जिस्ट नहीं होता, होगा तो डिलीट हो जाएगा, सिंपल सा एक लाइन का काम है, ठीक है। तो यही काम जो हमने यहाँ पर किया है, हमको यहाँ करना है, इधर फ्रंट एंड, बट अभी उसको अपने को डिलीट क्या देना है, रिक्वेस्ट मैपिंग क्या देना है, रिक्वेस्ट मैपिंग, और वहाँ से आया है PID, और क्या कर दिया, प्रोडक्ट से जो डिलीट कर दिया, और कहाँ कर दिया रिडायरेक्ट वापस,
टाइप का वैल्यू है? स्ट्रिंग है ना, व्हाट आर वी रिटर्निंग? तो ये रिस्पॉन्स एंटिटी सिर्फ काम करेगा रेस्ट कंट्रोलर में, कंट्रोलर में नॉर्मल स्ट्रिंग लिख देना बस, ठीक है। तो अभी आपके पास ये डिलीट एंड पॉइंट होना चाहिए। तो अपन ने क्या किया, आपने ऑल प्रोडक्ट्स पे गए और क्या कर दिया, Amazon/delete प्रोडक्ट, ये आपका एंड पॉइंट होना चाहिए, राइट। ये आपका मैच होना चाहिए, मैच हो रहा है क्या? मैच हो रहा है, ठीक है। तो अब ये काम कर जाएगा, लेट्स सेव इट, रिफ्रेश करते हैं, दिख रहा है एक डिलीट बटन आ गया। अब मैं अपने डिलीट कर रहा हूँ कचरा पट्टी, ये 5 को डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट पे क्लिक किया, पूछेगा डू वांट टू डिलीट, ओके किया, डिलीट हो गया 5। वापस कर 5 को ओके करता हूँ, हो गया 4 बचा अभी, 4 को भी डिलीट करता हूँ, ओके करता हूँ, 4 गया, क्या बचा लास्ट में 8000, इसको भी डिलीट करता हूँ, एक ही बचा है ना, इसको अपने 20 फिर से आ गए नॉर्मल, ठीक है ना। अब मुझे अपडेट भी करना है, व्हेन आई क्लिक ऑन अपडेट व्हाट शुड हैपन, जिस प्रोडक्ट को मुझे अपडेट करना है वो खुलना चाहिए एक फॉर्म के अंदर, है ना। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ऑल प्रोडक्ट्स में जा रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ मैं, इसको भी अनचेक करता हूँ, ठीक है। तो ये पूरा एक टीडी है, तो फिर ये टीडी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। काहे दो मारत रही, अपन एक काम करते इसको अच्छे से उठा लेते कहीं से, ऑल प्रोडक्ट्स में अपन ये जो प्राइस के बाद का जो स्पैन है वहाँ से उठाते हैं और टी बॉडी तक, ठीक है। प्राइस के बाद का जो स्पैन है वहाँ से उठाते हैं टी बॉडी तक, प्राइस के बाद का जो स्पैन है, प्राइस के बाद का जो स्पैन है वहाँ से लेके कहाँ तक, टी बॉडी तक, ये पूरा कॉपी कर लेते हैं ताकि अपन ने जो हम कमेंट किए तो उसमें कुछ शो करेगा। क्या कर रहे हैं अपन अभी, प्राइस के बाद का जो स्पैन है वहाँ से टी बॉडी लेके पूरा डाल, ठीक है, निकल गया एरर। सो ये तो समझ में आ गया आपको डिलीट, ठीक है। और अभी जब हम लोग अपडेट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, विल इट अपडेट डायरेक्टली और विल इट ओपन अ फॉर्म? तो क्या है फिर वो, क्या पास कर रहे हैं उसको हम, प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। तो अपने इसमें जाएंगे अपन कंट्रोलर में, और हम कहाँ से खोल रहे हैं उसको, हाइपर लिंक से क्या बटन से? तो हाइपर लिंक से खोल रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे उसको, रिक्वेस्ट होगी, क्या देंगे, और क्या रखा है हमने रिक्वेस्ट मैपिंग का नाम, अपडेट प्रोडक्ट फॉर्म, है ना। तो क्या रखा है हमने, अपडेट प्रोडक्ट, सही है। तो जो एंड पॉइंट वही है। अब ये जो प्रोडक्ट है मैं ब्लैंक बना रहा हूँ, तो ये वहाँ से आ रहा है मुझे फ्रंट एंड से, क्यों नहीं, वहाँ से क्या आ रहा है, नहीं नहीं, अपडेट प्रोडक्ट फॉर्म को, उसको तो सिर्फ आईडी आ रहा है ना अपडेट प्रोडक्ट फॉर्म को, तो हम यहाँ पर ये हिट कर रहे हैं अपडेट प्रोडक्ट फॉर्म, तो सिर्फ क्या आ रहा है, आईडी आ रहा है, राइट। अपन जो इटरेट कर रहे हैं ये प्रोडक्ट को, और प्रोडक्ट का अपने आईडी है ना, तो जिस पे क्लिक करेंगे उसका आईडी आएगा, तो वो आईडी यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, चेक करना है कि आईडी डेटाबेस में है क्या नहीं मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास एक एंड पॉइंट है गेट प्रोडक्ट, अपन यहाँ बनाए रहेंगे, है ना। गेट मैप पे था ना, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, है ना ये वाला। तो मैं क्या करूँगा,
गेट प्रोडक्ट आईडी सर्च कर लूँगा। तो क्या किस में ले लेंगे उसको अपन अपने प्रोडक्ट पे, तो मुझे ला के दे देगा प्रोडक्ट आईडी का। और फिर मैं कहाँ जाऊँगा, कौन से व्यू को जाऊँगा? और फिर ये जो मेरा प्रोडक्ट आया है, क्या नाम दिया है मैंने उसको, P1 दिया है क्या? वो क्या नाम से पुकारा जाएगा उधर? प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी मेरे को क्या बनाना है, एक ठीक है। तो उसमें अभी जो हम बस प्रोडक्ट वो हम दिखा देंगे, राइट। ये फॉर्म आ गया, वो सेम ऐड जैसा ये फॉर्म, ये कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब वो जो प्रोडक्ट आया है वो कौन से वेरिएबल में आया है? ठीक है, उससे पहले तुम लोगों में अपडेट प्रोडक्ट कैसे काम करता है वो बताता हूँ। ठीक है, पहले अपन यहाँ कर लेंगे अपडेट प्रोडक्ट को। ठीक है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पुट मैपिंग। क्या बोलते हैं इसको हम? पुट मैपिंग। अब पुट मैपिंग में क्या होता है कि आप प्रोडक्ट को अपडेट करते हैं। जब भी आप प्रोडक्ट को अपडेट करेंगे आपको उसके दो चीज़ें चाहिए, एक तो उसका आईडी और एक उसका न्यू वैल्यूज, है ना। देखो ऐसा, मैं तुमको उसको डायग्रामेटिकली तुमको दिखाता हूँ तो तुम्हारे को समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, बस पहले ऐसा। देखो, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जब भी अपडेट करेंगे तो ये मेरे प्रोडक्ट्स है, राइट। प्रोडक्ट को जो पुट मैपिंग उसको हम दो पैरामीटर पास करेंगे। पहला पैरामीटर क्या होगा, जो प्रोडक्ट मुझे अपडेट करना है। दूसरा पैरामीटर होगा उसके नए वैल्यूज, क्या होंगे उसके उसके नए वैल्यूज। ठीक है, तो ये किसे जाएगा, ये कैसे जाएगा, पाथ वेरिएबल से। और नए वैल्यूज कैसे आएंगे, रिक्वेस्ट बॉडी से, है ना। तो अभी यहाँ पर प्रोडक्ट आ गया, तो पाथ आईडी से क्या आ गया, प्रोडक्ट आईडी आ गया। और नए वैल्यूज कहाँ से आएंगे, नए वैल्यूज रिक्वेस्ट बॉडी से। ठीक है, लेट से मैंने इसका नाम रखा न्यू वैल्यूज, क्या रखा मैंने नाम। फिर हम इन दोनों को हम पास कर देंगे कौन से फंक्शन को, अपडेट प्रोडक्ट को, उसको पास कर देंगे हम। वो मुझे दे देगा नया प्रोडक्ट। ठीक है, और फिर वो मैं रिटर्न कर सकता हूँ आपको। ठीक है, ये होता है पुट मैपिंग, कि आपको जब करना पड़ेगा उसको तो आपको उसको दो चीज़ें पास करनी पड़ेगी, आईडी और न्यू वैल्यूज। अब इधर आ जाएंगे अपडेट प्रोडक्ट में। अब सबसे पहले तो इस ऑब्जेक्ट को सर्च करके लाना पड़ेगा, राइट, ठीक है नहीं। तो वो यहाँ कर लेंगे अपन,
अगर रिपोजिटरी में वो है नहीं तो करेंगे आईडी डज नॉट एग्जिस्ट। अभी आपने को उसको अपडेट करना है तो पहले उसको फिर डेटाबेस से फेच करके लेके आओ। क्या करो उसको, तो अगर मुझे 2 को करना है अपडेट तो मैंने 2 को फेच करके लेके आया तो ऐसा आ गया 22.3 रेटिंग 2 मेंस क्लोथिंग आ गया, ठीक है। फिर मैं अभी उसके वैल्यूज़ को करूँगा अपडेट न्यू वैल्यूज़ से, है ना। उसका प्राइस क्या हो जाएगा, न्यू वैल्यूज़ का प्राइस। उसकी कैटेगरी क्या हो जाएगी, न्यू कैटेगरी की कैटेगरी। और डिस्क्रिप्शन न्यू डिस्क्रिप्शन, है ना। पहले अपने को क्या करना है, ये फेच करके लेके आना है ना। तो अपने पास एक फंक्शन रहेगा अपने पास। अब तो इसमें प्रोडक्ट सारे वाले कंट्रोलर में है ना। अभी हम लोग सर्विस में जाना पड़ेगा ना, सर्विस में चल रहे हैं अपन अभी चल रहे हैं सर्विस में चल रहे हैं अपन, ठीक है। तो सर्विस को वो ऑब्जेक्ट चाहिए तो क्या फंक्शन है उसके पास, सर्विस को फंक्शन है ना, गेट बाय आईडी गेट प्रोडक्ट। क्या फंक्शन है उसके पास, क्या फंक्शन है सर्विस के पास, गेट प्रोडक्ट है ना उसके पास, गेट प्रोडक्ट है उसके पास। तो वो क्या करेगा, डॉट गेट प्रोडक्ट कॉल कर लेगा और खुद का फंक्शन ना हो, उसी क्लास का फंक्शन है तो मुझे लाके दे देगा। और ये क्या होगा मेरा, प्रोडक्ट फ्रॉम डीबी क्या होगा मेरा ये, है ना। और मैंने मेरे खुद का फंक्शन कॉल किया ना, सर्विस का फंक्शन ही कॉल किया है ना। तो कुछ किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है कॉल करने के लिए, डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हो। तो अगर वो जो मैंने आईडी पास किया है वो नहीं है तो वो कर देगा थ्रो एक्सेप्शन। और अगर मैंने जो भेजा है वो है तो वो लाके दे देगा मुझे, है ना। यहाँ तक आ गया मेरे पास, वो आ गया। अब करना क्या है, इसको सेटर कॉल कर करके अपडेट कर दो, है ना। तो क्या कर दो फिर, प्रोडक्ट फ्रॉम डीबी डॉट सेट कैटेगरी। कैटेगरी कहाँ से आ रही है उसकी, हाँ तो न्यू वैल्यूज डॉट गेट कैटेगरी, है ना। ऐसे बस सेटर सारे कॉल करते जाओ जो जो आप पास कर रहे हो। तो आप कैटेगरी चेंज कर सकते हो, आप क्या क्या चेंज कर सकते हो, उसका टाइटल चेंज कर सकते हो। लेट्स टेक फ्रॉम स्टार्ट। ये चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्रिएटेड ऐड डिस्क्रिप्शन चेंज करने की जरूरत है कि हाँ वो कर सकते हो। तो क्या कॉल कर दो, सेट डिस्क्रिप्शन स्पेलिंग, ठीक है। नॉट सेट आईडी जरूरत नहीं है, इमेज आप चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करोगे इमेज, न्यू वैल्यूज डॉट गेट इमेज, है ना। वो क्या चेंज करना है अपने को, इमेज करना है, मॉडिफाइड करने की जरूरत नहीं है, प्राइस आप चेंज कर सकते हो। वैल्यूज डॉट गेट, जब ये हो जाए फिर आप इसको सेव करो डेटाबेस में। तो जब हम सेव कैसे करेंगे, रिपोजिटरी डॉट सेव, किसको करेंगे सेव, सारा चेंज किस में आ गया है, इसको रिटर्न कर देंगे फिर, ठीक है। तो ये अपना काम हो गया ना अपडेट प्रोडक्ट का। तो वैसे ही अभी यहाँ पर अपने को उसको कॉल करना है। तो क्या आ गया अपने को, आईडी आ गया है फॉर्म से। अपन ने क्या करें, आईडी फेच करके कहाँ डेटा भेज दिए, अपडेट प्रोडक्ट फॉर्म। अपडेट प्रोडक्ट फॉर्म ने उसको सारा डेटा खोल के दिखा दिया अपने को कि ये उसका लेटेस्ट वैल्यूज़ है, ठीक है। तो अपन ने इसके वैल्यूज़ को चेंज किया और क्लिक किया अपडेट प्रोडक्ट पे, तो कहाँ गया, उसके एक्शन पे गया। एक्शन कहाँ ले गया उसको, ये है क्या अपने पास, ये है क्या अपने पास।
कहाँ ले गया उसको, अपडेट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऑल प्रोडक्ट्स पे गए, यहाँ पर अपडेट प्रोडक्ट फॉर्म पे थे हम लोग। तो जो हिट किया तो कहाँ गया, और क्या पास किया पैरामीटर आपने, प्रोडक्ट आईडी पास किया आपने, ठीक है। तो यहाँ जाके आपको उसको पाथ में क्या देना पड़ेगा, प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। जो भी नाम दिया वो सेम नाम दे दो। तो अभी आपके अपडेट प्रोडक्ट में क्या आ गया, प्रोडक्ट आईडी तो आ गया, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या आई है, और साथ में क्या है, उसका एक ऑब्जेक्ट भी साथ में आया, नया मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो वो हम कैसे रीड करेंगे इधर, नया वो कैसे आया है, मॉडल एट्रीब्यूट ना, हम लोग ये कर रहे हैं ना, एमवीसी कर रहे हैं ना। ठीक है, तो ये आपका न्यू वैल्यूज, इसको जो भी नाम देना है आपको, ठीक है। अभी हम क्या कॉल कर देंगे, सर्विस का कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे, बाकी सब प्लग एंड प्ले ही है, बाकी सब प्लग एंड प्ले है बस, ठीक है। अपडेट प्रोडक्ट कॉल करेंगे और क्या पास कर देंगे, आईडी और न्यू वैल्यूज, वो उसको चेंज कर देगा, और अगेन वी रिडायरेक्ट टू अमेजॉन ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। एक तो ये, दूसरा, जब अपडेट प्रोडक्ट ने हिट किया है इधर, तो ये कैसे हिट किया है उसने, एक्शन से क्या, हाइपर लिंक से, एक्शन से। तो मेथड क्या लिखा है इसने, पोस्ट लिखा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने को पोस्ट नथिंग करना पड़ेगा इसको, ठीक है, ओके। सेव हो गया ये, चलो अब जाके हिट करके देखते हैं कि अपडेट भी काम कर रहा है। सो अभी मैं आ गया हूँ अपने इधर, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं इसको, अवेलेबल टू सी द ब्राउजर, आ गया, देखो इधर आ गया, अपडेट आ गया। तो इसको आप क्लिक करो अपडेट पे, तो क्या बोल रहा है ये, अपडेट प्रोडक्ट फॉर्म 1, क्या नाम था उसका, अपडेट अमेजोन दिया था ना उसको, हाँ दिया तो है, अमेजोन भी तो दिया है। अब इसको अपन ने दिया है क्या, अमेजोन ऑल प्रोडक्ट्स पे गए, ऑल प्रोडक्ट्स पे, हाँ क्या दिया अपन ने, अपडेट प्रोडक्ट फॉर्म, ये दिया ना अपन ने, ये दिया था बराबर अपन ने, कंट्रोल, ये बार चेक कर लेते हैं दिया था क्या नाम बराबर, अपडेट प्रोडक्ट फॉर्म, हाँ सही है। पाथ वेरिएबल दी पास किया ना अपन ने इसको, अपन ने पाथ वेरिएबल लेना था ना हाथ में, तो पाथ वेरिएबल तो पास करना था अपन ने, अपन ने चल लिखा तो है पाथ वेरिएबल, अपन ने लिया नहीं उसको, अपन ने यहाँ लिखा तो है, तो अपन ने उसको लिया नहीं, है ना, ये ले लिया था अपन ने। तो अब ये पाथ वेरिएबल भी ले लिया, रिफ्रेश हो गया, जाते हैं वापस रिफ्रेश करते हैं इसको, आ गया, क्लिक किया अपडेट पे, देखो वो प्रोडक्ट खुल गया है क्या नहीं। और अभी वो इमेज कैसे आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है, इमेज टेक्स्ट आ रहा है, अपने को क्या चाहिए पर इमेज, ये चाहिए ना अपने को इमेज, तो फिर इसको भी फिर अपने को वो सब चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी उसके अंदर अपने को, मल्टी पार्ट वो सब, है ना। वो देख लेना तुम लोग, ठीक है। अभी तो फिलहाल अपना ऐसे इमेज खुल रहा है, ओके। तो
आपको जो भी चेंज करना है, लेट्स इसका प्राइस 109 है, मैं करता हूँ उसको 110 करता, 119 करता हूँ, अपडेट पे क्लिक किया, हो गया 119। तो अपने सारे CRUD ऑपरेशंस कर लिए, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ओके, Yes, sir. ये UI पार्ट रहता है आपके एप्लीकेशन का। अभी आप इस पे थोड़ा सा अपडेट पे काम कर सकते हो कि अभी आपको अगर अपडेट प्रोडक्ट फॉर्म से आपको अगर वहाँ पर वो चाहिए, जैसे अभी आपने क्या लिया, टेक्स्ट लिया ना इमेज के लिए, है ना। Yes, sir. अभी यहाँ पर इमेज का अपलोड करके आपको नया फाइल भेजना है, वो इस पर रिसर्च कर लो एक बार। ओके, मेकिंग सेंस। सो